कि हम समय के कमिटमेंट्स को ध्यान में रखते हुए सर ने आते ही कहा कि इमीडिएटली हम अपने काम पे लगते हैं। इन्होंने एग्जैक्टली मना किया कि मुझे कोई फॉर्मेलिटीज़ भी नहीं चाहिए, लेकिन हमारी परंपरा है, आप सब जितने व्यापारी बंधु बैठे हुए हैं हमारे बीच में, जब हमारे कोई भी मेहमान आते हैं, मेहमान नहीं है सर, हमारे एक टीम के ही पार्ट हैं, लेकिन हम चाहेंगे कि हम आपका इसमें स्वागत करें। आशीष भाई आप भी आइए प्लीज़, आइए प्लीज़। तो दोस्तों, हमारे बीच में हर्ष सिंह जी जो कि एडिशनल कमिश्नर हैं यहाँ एपीएससी में। हम डे टू डे बेसिस पे जो आपके चैलेंजेस आते हैं आपके पास रेगुलर लेके उसके समाधान के लिए जाते हैं। सर का इस कस्टम में और जीएसटी में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रहा है। पॉलिसी फॉर्मेशन से लेकर तमाम चीज़ों के लिए आपके तमाम प्रश्नों के उत्तर हर सर के माध्यम से आपको मिल सकता है। चूंकि सर ने कहा चीज़ों को शॉर्ट करके, हम तो बहुत शॉर्ट में मैं इस बातों को फिर से रख रहा हूँ। इंद्रवीर सिंह जी जो डिप्टी कमिश्नर हैं, सर हम आपका भी यहाँ पे इस फोरम में, चूंकि आप पहली बार इस चीज़ के लिए हम लोग इकट्ठा हुए हैं और आप मुझे लगता है पहली बार सेकेंड टाइम होंगे, तो यहाँ पे आपका अभिनंदन करते हैं सर। जय सर जो कि एक्सपोर्ट डिवीज़न को देखते हैं, सर आपका भी यहाँ पे हम स्वागत करते हैं। और अब हम शुरुआत करने से पहले एक बार पुष्पगुच्छ से हम हमारे एडिशनल कमिश्नर श्री हर्ष सिंह जी का अभिनंदन करना चाहेंगे। आशीष सर आपके प्रिय पुष्पगुच्छ और मोमेंटोस दे करके सर का स्वागत करें। सर यहाँ पे मैं आपसे आग्रह करूंगा सर कि आप इंद्रवीर सिंह जी को भी पुष्पगुच्छ और मोमेंटो दे करके उनका अभिनंदन करें। आशीष सर आप ही करिए। जयेश सर का मैं जयेश सर जो आपका स्वागत मैं स्वयं भी करना चाहूंगा। एडिशनल सर, मैंने आपकी बातों का 100% अनुपालन किया है, हमने कोई फॉर्मेलिटीज़ में टाइम नहीं गवाई है और अब हम सीधे सीधे कार्यक्रम पे जाते हैं। मैं सर से आग्रह करूंगा कि सर आप आके पहले अपने 2 वचन हमारे ऑडियंस के सामने रखें और फिर उसके बाद में पूरा हैंड कैरी और थोड़ी सी कुछ चर्चा सर निवेदन करूंगा कि बजट के ऊपर भी अगर आप थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। थैंक यू सो मच सर, प्लीज आइए सर। आप सब Good afternoon, everyone. Special thanks to GJEPC for organizing this event, and I'm really surprised and at the same time glad that all of you have turned up for this important session on hand carry, for which GJPC has actually got some major policy change across CBIC, and it had resulted into this notification being issued and this system being operationalized. So we'll take forward from where we had left last time, because last time in one of the such sessions, we had briefly touched upon what are the benefits for MSME, and this was one of the particular area where gems and jewelry sector's particular response has been acceded to, and this has been operationalized obviously with the help of GJPC, BDP, and every other stakeholder, including Adani at CSMI Airport. This topic will be dwelled much deeper by my DC and AC, Indraveer and Jayesh. For me, I will be taking slight overview of the budget announcement this year. I know last year has been particularly difficult for the diamond sector, especially after the tariff of US and the pressures due to lab-grown diamond and the volatility that we saw across the rough diamond as well as the corrections in CPD. So I know it has been a very tough year, but this year we have already started with some very good trade deals
which will obviously take some time to come into effect. However, as Milton Friedman states, that inflation is always influenced by expected inflation. So growth is also driven by expected growth. So I think that will uplift the sentiment of the entire sector per se. And with the deals coming into effect pretty soon, we'll obviously have a lot of demands piling up for the industry, and they can take the most benefit out of it. In the same line, the government of India has also announced number of schemes and number of policy measures to facilitate the MSME sector. Diamond is a particular and a specific sector where capital is the key instrument which leverages any company. And the barriers to entry to this trade is particularly high. Despite this, with the kind of expertise in polishing, cutting, polishing, and the supply chain, we have seen number of companies eclipsing the long-standing companies that were there. We have a team number of examples where people have actually started from scratch and now they're $1 million companies and doing their bill books are running in billions of dollars. So obviously, our attempt as government is always to reduce the friction and to lower the barriers to entry. In this direction, one of the major sector that is for export, what we have as government decided that generally export from such large complexes such as PCC is only efficient if it is done at volume. At times, the marginal costs are substantially high, which leads to someone incurring a cost more than what their appetite might be. Although that would be justified considering the kind of facility that is being provided. However, that may not be the exact call of that exporter at that point of time. In this direction, one of the most convenient way of exporting commodities is through courier. Until now, courier had a bar of export value of 10 lakh rupees, which was the cap value for export of any consignment. Now, with the prices of gold and the prices of other precious metals rising exorbitantly, such exports were kind of hampered, or they were either driven around the policy to break it into smaller shipments and then exported. Now this cap is not there. So the MSME sectors can tap into the global market with lower cost and lower barriers to entry by also utilizing the other channel of courier. In this regard, already in one of the meetings, GJPC has requested for favorable infrastructure at export terminals. In this regard, already a spectrometer is there in place. We are also trying to get other equipment placed at the courier terminal so that anyone from your trade, if they want to send, say, a sample to an exporter there in country abroad, they can send smaller samples, they can send smaller shipments from there with a lower cost incurred. So this was one of the primary budgetary announcement exceedingly relevant to the gems and jewelry sector. Apart from this, there are a few other policy requests of GJPC that is still under consideration by the board, however, could not be announced right at the time of budget being announced. And GJPC is already pursuing with respect to those policy changes, especially the height variation in diamonds that would be allowed at the time of re-imports or if they are sent for certification. So these policies are still under anvil, and we are hopeful that in the coming months, maybe some positive development would be done when pushed in by both the council as well as recommended by the department. Apart from this, another major area which we found worth mentioning is the remittances that are to be accounted for after the exports have taken place. Although it's very difficult to have a proper check on the buyer abroad, it is still the duty of the exporter to ensure their remittances are accounted for, and in case such remittances fail,
proper measures are taken through the ED Code Bank and permission are taken from RBI to ensure that their remittances have been settled or written off to that effect. So this aspect may also be taken up by MSME over here in general. And with this, I would request my team member to take over from here for the topic for which all of you have come, that is hand carry. And I would request Indravi to start with the presentation. Thank you all. थैंक यू सर. सब इस तरफ सब बैठ जाएंगे हम लोग. हाँ, बेटर होगा कि उस तरफ रहें तो एटलीस्ट प्रेजेंटेशन को देख पाएंगे. इस यहाँ से चेयर हटवा दीजिए, इस तरफ से चेयर हटवा दीजिए. ये तो एक लाइन आगे क्रिएट कर दीजिए क्योंकि मुझे लगता है सारा वहाँ तक जगह खत्म हो गई है. हाँ, कहाँ गए सर? सर आप प्रेजेंट करेंगे तो ये इसको यूज करेंगे. ठीक है, एक मिनट आगे सबको एक्सप्लेन कर दो. आप सभी को नमस्कार. आज हम यहाँ पे जैसे टॉपिक लिखा हुआ है हैंड कैरेज ऑफ जेम्स एंड ज्वेलरी, जो अभी तक जनरली देखा जाता है या समझा जाता है वो ये कि एयर कार्गो से, फ्लाइट से जेम्स एंड ज्वेलरी का इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है. ये एक नई फैसिलिटी है जिसके अंदर पैसेंजर अपने साथ अपनी सूटकेस में, अपनी अटैची में अपना जेम्स एंड ज्वेलरी का कंसाइनमेंट ले जा सकता है और लेके आ सकता है. ये सुविधा लास्ट ईयर करीबन अप्रैल मई के महीने में स्टार्ट की गई थी मुंबई एयरपोर्ट पे पर्टिकुलरली. आप लोगों में से कई लोग विदेश यात्रा करते होंगे. ये वाला किसी ने देखा है एयरपोर्ट पे, टर्मिनल 2 पे, इंटरनेशनल डिपार्चर्स के अंदर ये जो है ये कस्टम्स का ऑफिस है हैंड कैरेज ऑफ जेम्स एंड ज्वेलरी के लिए. इसके अंदर ही यहाँ पे ये जो दरवाजा बना हुआ है, यहाँ पे स्टोर रूम भी है, वेयर हाउस भी है, स्ट्रॉन्ग रूम भी है. तो ये सारी सुविधाएं इंटरनेशनल टर्मिनल जो है T2 पे क्रिएट की गई हैं. अब मैं जनरली फील्ड में रहता हूँ, यहाँ पे कई बार इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है तो ट्रेड से बातचीत होती है मेरी. तो कई लोगों के मन में कई सारी आशंकाएं होती है, कई सारी शंकाएं होती है. तो मैं जनरली जब सुनते रहता हूँ लोगों से तो कोशिश कर रहा हूँ कि आज इस माध्यम से वो डाउट्स जितने सॉल्व हो सके वो किए जाएं. सबसे पहले एक कॉमन डाउट ये आता है कि भैया ये बिल ऑफ एंट्री या शिपिंग बिल हमें एयरपोर्ट पे फाइल करना है या प्रीशियस कार्गो PCCC में करना है. मतलब वो पोर्ट कोड कहाँ का डलेगा, क्या डलेगा, प्रोसीजर क्या होगा, ये एक सवाल, सबसे कॉमन सवाल उठता है. फिर दूसरा सवाल ये उठता है क्योंकि ये प्रीशियस गुड्स हैं, कई में डायमंड्स हैं, कई में ज्वेलरी है, क्या एयरपोर्ट पे ये पार्सल खुलेगा वापस, क्या इसको खोला जाएगा, बिखर जाए, कुछ हो जाए. ऐसे भी कई सारे डाउट्स आते हैं क्योंकि एयर कार्गो में जब जाता है एक बार यहाँ सील हो गया तो फिर आगे नहीं खुलता है वापस. क्या एयरपोर्ट पे कोई खोलेगा इसको. तीसरा सवाल कई लोगों ने पूछा कि भाई हमारा पैसेंजर लेके आ गया एक बार सामान, अब वो अराइवल हॉल में खड़ा है, अब उसको कितने घंटे रुकना पड़ेगा, प्रोसीजर कितना लंबा चलेगा, क्या उसको पूरे दिन वहां खड़ा रहना पड़ेगा, पूरे रात रहना पड़ेगा, समय कितना लगेगा. ये एक कॉमन सवाल कई लोग पूछते रहते हैं. फिर दूसरा ये कई लोग बोलते हैं कि भाई एक बार सामान हमने एयरपोर्ट पे जमा करा दिया, पैसेंजर जो लेके आया था, उसके बाद कितने दिन लगेंगे उसको आने में. इस क्वेश्चन को पूछने का एक दूसरा कारण यह है क्योंकि कई बार सामान जब गलती से कुरियर से आ जाता है तो कुरियर से BKC तक आने में कई बार बहुत लंबा समय लग जाता है, महीना भर तक का समय लग जाता है. तो लोगों को ये भी एक डाउट होता है कि कहीं ऐसा नहीं कि एयरपोर्ट पे एक बार जब सामान हमने जमा करवा दिया तो 5 दिन 10 दिन आ रहा है अपनी स्पीड से आराम से, क्योंकि वो चीज़ हैम्पर होती है ना, किसी का ट्रेड, किसी का बिजनेस उस चीज़ से हैम्पर होता है. ये कई सारे सवाल मैंने कई बार देखे थे लोगों के मन में. फिर कई लोगों ने बोला कि जब हमारा काम सरल रास्ते से हो ही रहा है, एयर कार्गो से आ रहा है जा रहा है, तो क्यों ये फालतू की माथापोड़ी करना, क्या पता कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर हो, 50 तरह के नए फॉर्म पूछेंगे, 50 तरह के नए डॉक्यूमेंट्स पूछेंगे, तो जो चल रहा है चलने दीजिए अभी. ये भी कई लोगों का ओपिनियन था. फिर कई लोगों का डाउट आया है कि एयरपोर्ट पे तो सारा सिक्योरिटी रहता है CISF का, वो कैसे मानेंगे कि ये पैकेज कैसे जा रहा है, क्योंकि वो बिना खुले जाएगा. उनके पास तो पावर है कि जिसमें उसमें डाउट आए जिस बैग में वो उसको खुलवा सकते हैं. और अगर वो पैकेज वहाँ खुलता है, कुछ बिखरता है, क्योंकि वहाँ भीड़ रहती है, पूरी रश रहता है,
ये भी कई लोगों को डाउट था कि CISF क्या हमारा पैकेज खोलेगी कि नहीं खोलेगी जब वो हैंड कैरेज में जाएगा। कई लोगों को ये डाउट था कि यहाँ पे तो स्ट्रॉन्ग रूम है BDP के अंदर, प्रॉपर फैसिलिटी है स्टोर करने की, एयरपोर्ट पे हमारा पैकेज कहाँ रखा जाएगा, कैसे रखा जाएगा, क्या सुविधाएं हैं उसके लिए, ये कई लोगों के सवाल थे। फिर एक सवाल जो GJEPC ने भी उठाया था एक समय पे, वो ये था कि बिल ऑफ एंट्री हम लोग पब्लिक हॉलीडे के दिन फाइल नहीं कर पा रहे हैं या संडे के दिन फाइल नहीं कर पा रहे हैं, ये भी एक सवाल आया था। फिर कई और सवाल उठे थे कि जो पैसेंजर आया सामान लेके, क्या उसी को प्रीशियस कार्गो कॉम्प्लेक्स में आना है उसको क्लियरेंस करवाने के लिए, या कोई और भी आ सकता है। एक सवाल ये भी उठा था कि अगर मेरी फ्लाइट कैंसिल हो गई, बीच में ऐसा हुआ था कि जब ओमान में अटैक हुए थे और ये दुबई वाली फ्लाइट्स बहुत डिस्टर्ब हुई थी, तो कई सारी फ्लाइट्स कैंसिल हो गई थी, पर्टिकुलरली एयर इंडिया वगैरह की। उस दरमियान ये सवाल उठा था कि अगर फ्लाइट कैंसिल हो गई या जिस फ्लाइट से हम जा रहे हैं वो चेंज हो गई, तो बिल ऑफ एंट्री शिपिंग बिल कैसे चेंज होंगे या क्या प्रोसेस होगा, ये भी कई लोगों ने सवाल उठाया था। एक सवाल ये भी उठा था कि मुंबई एयरपोर्ट पे जो है ये प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं, तो यहाँ से ये काम करना बेटर नहीं है। कई सारा ट्रेड दिल्ली जा रहा है और दिल्ली से हैंड कैरेज के थ्रू जाता है, ये भी कई बार मुझे सुनने को मिला। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए आज हमने सरल तरीके से थोड़ा प्रेजेंट करने का ट्राई करा है, जिससे कि कॉमन डाउट्स जो हैं और जो कॉमन प्रोसीजर है वो थोड़ा बताया जा सके। एक चीज़ जो कि इस पूरे प्रोसेस के अंदर देखी गई है कि इस प्रोसेस को बहुत सरल और बहुत आसान बनाया गया है। जैसे रेगुलर बिल ऑफ एंट्री फाइल होती है, ये इंपोर्ट का प्रोसीजर मैं बता रहा हूँ आपको। रेगुलर बिल ऑफ एंट्री जैसे फाइल होती है, वो सेम टू सेम बिल ऑफ एंट्री आपको फाइल करनी है, बस उसमें पर्सनल कैरेज इंडिकेट करना होगा। जनरली हम लोग IGM नंबर डालते हैं, एयरवे बिल नंबर डालते हैं, वो नहीं डालना होगा, सिर्फ आपको पर्सनल कैरेज इंडिकेट करना होगा। क्योंकि ये हैंड कैरेज में जा रहा है तो कुछ स्पेशलाइज्ड डिटेल्स भी इसमें रिक्वायर्ड होगी, जैसे उस पैसेंजर का टिकट नंबर क्या है, उसका PNR नंबर क्या है, फ्लाइट नंबर क्या है, पैसेंजर का नाम क्या है, पासपोर्ट नंबर क्या है, जो एक्सपोर्टर है या इंपोर्टर है उसका IC कोड क्या है, AD कोड क्या है, ये स्पेसिफिक डिटेल्स हैं जो आपको बिल ऑफ एंट्री के अंदर डालनी होगी, जो कि एक रेगुलर बिल ऑफ एंट्री के अंदर नहीं होती है। आप अब जब इंपोर्ट होता है तो आप बिल ऑफ एंट्री के अंदर पोर्ट डालते हैं, किस पोर्ट पे सामान आ रहा है। पोर्ट इसके अंदर प्रीशियस कार्गो कॉम्प्लेक्स ही रहेगा, PC4 जो है, IND PC4 इसका नाम है, पोर्ट सेम टू सेम रहेगा। अब जब आप एयरपोर्ट पे पैसेंजर आ गया इंपोर्ट का सामान लेके, तो उनको जिस प्रकार से ये है, ये रेड चैनल है एयरपोर्ट पे, आप लोगों ने देखा होगा कई जनों ने अराइवल हॉल के अंदर, जहाँ कस्टम के ऑफिसर यूनिफॉर्म में खड़े रहते हैं, वहीं पे आपको आना है और रिपोर्ट करना है कस्टम्स के रेड चैनल पे कि मैं हैंड कैरेज के थ्रू ज्वेलरी लेके आया हूँ या प्रीशियस गुड्स लेके आया हूँ, और वहाँ पे रिक्वेस्ट करना है कि मेरे गुड्स को काइंडली टेम्पररी डिटेन कर लीजिए। तो वो वहाँ पे टेम्पररी डिटेन कर लेंगे अपने गुड्स को, और जो ऑफिसर मौजूद हैं वो कार्गो अराइवल रिपोर्ट बना के सिस्टम में डाल देंगे गुड्स। अब एक डाउट ये भी आया था कि क्या वहीं पे उस गुड्स को खोल के एयरपोर्ट के कस्टम ऑफिसर उसको एग्जामिन करेंगे, उसको देखेंगे, तो ये नहीं होता है। वो गुड्स वहाँ पे, जैसे सपोज ये वो बैग है जिसके अंदर गुड्स आए हैं, तो इसको नहीं खोला जाएगा एयरपोर्ट के ऊपर, क्योंकि इसका मेन पोर्ट प्रीशियस कार्गो कॉम्प्लेक्स है, एयरपोर्ट नहीं है, तो वो गुड्स नहीं खोलेंगे। मात्र ये ऑफिसर जो हैं ये गुड्स को सील कर देंगे कस्टम सील से और एक सिक्योर्ड वेयर हाउस में रख देंगे, तो आपके गुड्स एयरपोर्ट पे खोले नहीं जाएंगे। अब अगला सवाल ये होता है कि सर, अच्छा सर, ओके सर, ठीक है, ओके सर। तो सर का जैसे कहना है कि वो एक बार खुलेगा, उसका वेट नापा जाएगा और फिर उसको मेंशन कर दिया जाएगा बिल ऑफ एंट्री के अंदर। अब ये होता है कि जब आपका पैसेंजर ने सब हो गया, माल सील हो गया वापस, तो उस समय पे पैसेंजर को एक डिटेंशन रिसीट दे दी जाएगी, एक सिंगल पेज दे दिया जाएगा, और वो सामान जो एयरपोर्ट पे रखा गया है वो प्रीशियस कार्गो कॉम्प्लेक्स से कस्टम्स ऑफिसर जाएंगे, जो अंडर हिज एस्कॉर्ट और हर एस्कॉर्ट वो सामान BKC में आ जाएगा और यहाँ पे रखा जाएगा। अब इंपोर्टर या फिर उनके ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव प्रीशियस कार्गो कॉम्प्लेक्स कस्टम्स में आ सकते हैं क्लियरेंस करवाने के लिए सामान का। उनको मात्र वो जो डिटेंशन रिसीट दी गई थी एयरपोर्ट के द्वारा, वो एक पेपर लेके आना है और उसके बेसिस पे आगे की कार्रवाई चालू कर दी जाएगी। इस पूरी प्रक्रिया के अंदर जो एक सवाल उठ भी रहा था, डाउट भी आ रहा था कि समय कितना लगेगा।
इसमें ये एम किया गया है कि अगर डिटेंशन रिसीट इंपोर्टर 12 बजे तक लेके आ जाते हैं तो हम सेम डे उस गुड्स को क्लियर करके इंपोर्टर को हैंड ओवर कर देंगे। तो विद इन 24 आवर्स इसको क्लियर करने का टारगेट रहता है। और पिछले कई दिनों से हमने मोर देन 40-45 पार्सल यहाँ पे क्लियर किए हैं और सेम डे क्लियरेंस किया जा रहा है इनका। तो ये सुविधा, मतलब जो एक डाउट होता है कि बहुत डिले हो जाएगा, लंबा समय लग जाएगा, वैसा कुछ नहीं है, बल्कि एक बहुत ही क्विक और फास्ट फॉरवर्ड प्रोसीजर है। अब एक्सपोर्ट के लिए देखा जाए तो आपको जो शिपिंग बिल है वो भी सेम प्रकार से भरना है, पर्सनल कैरेज इंडिकेट करते हुए। उसके बाद में ये शिपिंग बिल जो है ये डिपार्चर फ्लाइट के 24 घंटे पहले आपको फाइल करना होगा, सो दैट कि उसको प्रॉपर्ली एग्जामिन किया जा सके, उसका लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर जिसको लियो बोला जाता है वो जनरेट किया जा सके। इसमें सेम प्रकार से स्पेशलाइज डिटेल्स आपको डालनी होगी, ई टिकट नंबर, पीएनआर, फ्लाइट नंबर, पैसेंजर नेम, पासपोर्ट नंबर, आईसी कोड, एडी कोड, ये सारे जो कि इसमें जो स्पेशल चीजें हैं, फर्स्ट चार चीजें जो हैं, ई टिकट नंबर, पीएनआर नंबर, फ्लाइट नंबर, पैसेंजर नेम, पासपोर्ट नंबर, ये एक अलग चीजें हैं जो कि रेगुलर बिल ऑफ एंट्री के अंदर नहीं होती है। अब आप देखेंगे इसका भी पोर्ट एयरपोर्ट नहीं होगा, PC4 ही होगा, IND PC4 पोर्ट होगा इसका। एक्सपोर्टर को अपना सामान 24 घंटे पहले लेना होगा, डिपार्चर के पहले, ताकि उसको एग्जामिन किया जा सके, रजिस्टर किया जा सके, और जब एग्जामिन हो गया, असेसमेंट हो गया, तो उसका लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर जनरेट किया जा सके, सो दैट एक सफिशिएंट टाइम रहे, यहाँ से सामान को अंडर एक्सकॉर्ट एयरपोर्ट पहुंचाया जा सके, वहां रखा जा सके, ताकि जब पैसेंजर आए तो उसको इमीडिएटली वो सामान दिया जा सके। अगर कोई गुड्स दिन में 12 बजे से पहले ले आ जाते हैं प्रीशियस कार्गो कॉम्प्लेक्स में, तो सेम डे उसको लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर देने की हमारी कोशिश रहती है। और अभी तक का एक्सपीरियंस यही रहा है कि अगर सब कुछ करेक्ट है, परफेक्ट है, तो शाम होते होते उनको लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर दे दिया जाता है। और जब लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर दिया जाता है उस समय पे एक्सपोर्टर एक रिक्वेस्ट भी करते हैं टेम्पररी डिटेंशन ऑफ गुड्स का, कि मेरे सामान आप टेम्पररीली एयरपोर्ट पे डिटेन कर लीजिए। फिर यहाँ से वो सामान हमारे कस्टम्स ऑफिसर के एस्कॉर्ट में एयरपोर्ट पहुंच जाता है, सफिशिएंट टाइम पहले पहुंच जाता है जब आपकी फ्लाइट होती है पैसेंजर की, उससे पहले। यहाँ से गुड्स को सील कर दिया जाता है कस्टम सील में, और एयरपोर्ट पे एस्कॉर्ट में पहुंच जाता है। एयरपोर्ट ऑफिसर उस डिटेंशन रिसीट के बेसिस पे एयरपोर्ट पे उसको डिटेन कर लेते हैं, और वहां से जो ऑफिसर गया है सामान को लेके यहाँ से, वो डिटेंशन रिसीट लेके आ जाता है, जो कि यहाँ से एक्सपोर्टर को हैंडओवर कर दिया जाता है। नाउ दे हैव अ डॉक्यूमेंट सेइंग दैट कि हमारा सामान एयरपोर्ट पहुंच चुका है और अंडर सेफ कस्टडी, सेफ वेयर हाउस में रखा जा चुका है। अब जब पैसेंजर पहुंचता है एयरपोर्ट के ऊपर, तो वो इन ओरिजिनल वो जो डिटेंशन रिसीट दिया गया था वो लेके इंटरनेशनल डिपार्चर में इमिग्रेशन क्लियर करने के बाद में कस्टम्स का डेस्क है, वहां पे जाके बोलते हैं कि साहब ये हमारा डिटेंशन रिसीट है और हमारा हैंड कैरेज से जाना है, तो ये सामान आप पकड़ाइए। वो कस्टम्स ऑफिसर वहां से आपको एस्कॉर्ट करके लेके जाता है GJAPC का जो वेयर हाउस जो फर्स्ट फोटो में दिखाया गया था, वहां पे लेके जाता है। आपके डॉक्यूमेंट्स चेक करने के बाद में आपको सामान हैंडओवर कर दिया जाता है, और वो अंडर द कस्टम्स एस्कॉर्ट ही आपको फ्लाइट के बोर्डिंग गेट तक ले जाया जाता है और आपको फ्लाइट में बोर्ड करा दिया जाता है। तो ये प्रोसीजर एकदम हैसल फ्री, एकदम आराम से होता है, विदाउट एनी डिले। इसके अंदर पैसेंजर विल बी एस्कॉर्टेड टू वेयर हाउस एंड देन टू द डिपार्चर गेट टू बोर्ड द फ्लाइट। एक बार फ्लाइट बोर्ड हो गई, पैसेंजर मैनिफेस्ट आ गया, वो कस्टम ऑफिसर सिस्टम में एंट्री कर देते हैं कि ये प्रॉपर माल भारत से एक्सपोर्ट हो चुका है। तो ये ब्रॉड प्रोसीजर था। तो आपको सुनने में भी लग रहा होगा कि ऐसा कोई स्पेशल प्रोसीजर नहीं है या कोई कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर नहीं है, मोर और लेस सरल ही प्रोसीजर है। अब इसमें कुछ टेक्निकलिटीज जो आपको देखना होता है कि बिल ऑफ एंट्री जब आप फाइल कर रहे हैं तो वो पर्सनल कैरेज की होनी चाहिए। आपका इंपोर्टर टाइप अगर बिल ऑफ एंट्री फाइल हो रही है तो H, हैंड कैरेज के लिए H लिखा जाता है, और जब आप शिपिंग बिल फाइल कर रहे हैं तो हैंड कैरी फ्लैग Y के नाम से आपको बिल ऑफ एंट्री या शिपिंग बिल फाइल करने वक्त एंटर करना होता है। कुछ स्पेशल डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं, जैसे कि एक हैंड कैरेज ऑथराइजेशन जो IC होल्डर है वो देते हैं, एक डिटेंशन रिसीट आपको सिस्टम में अपलोड करनी होती है, एक अगर आपके री इम्पोर्ट का पार्सल है तो एक GJEPC से रजिस्ट्रेशन का मेंबरशिप सर्टिफिकेट RCMC होता है, वो अपलोड करना होता है। अगर ज्वेलरी है तो उनकी फोटोज अपलोड करनी होती हैं। अगर जिस कंट्री से आपका सामान आ रहा है इंडिया में, वहाँ के कुछ डिक्लेरेशन रिक्वायर्ड हैं तो वो डिक्लेरेशंस अपलोड करने होते हैं। Other than that, there is no special procedure, no complexity involved in the whole process.
अब जो ये सारी कहानी मैंने समझाई, ये बहुत सरल तरीके से मुंबई कस्टम जोन 3 का एक स्टैंडिंग ऑर्डर इशू हुआ था, उसके अंदर ये सारी स्टोरी बहुत सिंपल सरल भाषा में लिखी हुई है। सिमिलरली एयरपोर्ट स्पेशल कार्गो कमिश्नरेट ने एक पब्लिक नोटिस इशू किया था, उसके अंदर भी ये सारा प्रोसीजर बहुत क्लियरली डिस्क्राइब्ड है विद ऑल द टेक्निकलिटीज। तो मोर और लेस हैंड कैरेज प्रोसेस को लेके यही चीज़ें थी। और जिस दिन इस फैसिलिटी का उद्घाटन हुआ था तो जीजेएपीसी के अध्यक्ष और सदस्य और एयरपोर्ट और मुंबई कस्टम जोन 3 के सीनियर अफसर सब मौजूद थे और ये फैसिलिटी आराम से वेल फंक्शनिंग चल रही है अभी। आप लोगों को किसी को कोई डाउट हो तो आप बेशक पूछ सकते हैं। वो माइक ला रहे हैं। Sir, in the new FTP 2023, there is a provision of TIB where the consignee can be self also. If you are an IEC holder and a GJEPC member. So, in that case also, we can take this route for hand carriage? आपका ये कहना है कि आईसी होल्डर जो है वो स्वयं खुद लेके जा रहे हैं अपना सामान? Yes. ले जा सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। Even in hand carriage? सॉरी, यस। Okay. Importer या आईसी होल्डर और their authorized person, anybody can carry the goods with them. No, carrying is okay, but can the consignee be the exporter himself, where they are just taking it for exhibition purpose or for export promotion tour? I guess there is no problem in that. This procedure is the same for all. So you can take it in export Yes. promotion tour also. You can take Right. this route. Right. Okay. Is there a minimum quantity or a maximum limit to goods that we can take in gold jewelry? No, there is no such limits. No such Neither limit. minimum nor maximum limit. So the following up on the question he asked, we also can take it with us if we are taking it for a exhibition, right? Yes, you can take it. Yeah. Okay, thank you. एक्सपोर्ट प्रमोशन टूर के लिए अगर आप जा रहे हैं तो आप $1 मिलियन तक का लेके जा सकते हैं गुड्स। अगर आप एग्जीबिशंस के लिए जा रहे हैं तो $5 मिलियन का। जी, कोई और सवाल? हाँ, Good afternoon, sir. good afternoon. My question is that when we carry these goods, gold jewelry or diamond jewelry for hand carriage for Middle East, so can these goods be only taken for exhibitions or we can make a sale as well? सेल भी कर सकते हैं। कर सकते हैं। सेल कर सकते हैं, हाँ। तो उसके लिए कोई पर्टिकुलर SOP जनरेट हुई है? ऐसा कुछ भी इसमें इशू नहीं है। आप जब रेगुलर कंसाइनमेंट बेचते हैं एयर कार्गो से, वो भी सेल पर्पस के लिए होता ही है उसके अंदर, तो ये जस्ट एक दूसरा रूट है। सेम प्रोसीजर आप यहाँ भी कर सकते हैं। Same procedure can be applied over here? Yes. Okay, so it can be applied for sale as well? राइट। Okay, thank you. सर मैं आपको प्रैक्टिकली बता दूं कि इस पर्टिकुलर जगह से अब तक 3 प्रकार के गुड्स जा चुके हैं। एक तो एग्जीबिशंस के लिए लोग लेके गए हैं, जो एक्सपोर्ट प्रमोशन टूर के लिए लेके जा रहे हैं, वो सेकेंडरी हो गया। थर्ड, आउटराइट सेल बेसिस पे भी लोगों ने यहाँ से गुड्स बाहर भेजे हैं, जो फॉरेन बायर्स लेके गए हैं। और जो चौथा एकदम लेटेस्ट चीज़ हुआ है कि किसी सप्लायर्स ने अपने व्यक्ति के द्वारा सामान जो है विदेश को भेजा है, जो कि हैंड डिलीवरी करके आया है। तो इस तरह से आपकी ये चारों जो मोड्स थे कि आप एग्जीबिशंस के लिए ले जा सकते हैं, आप एक्सपोर्ट प्रमोशन टूर के लिए ले जा सकते हैं, दोनों में एक लिमिट्स है। और उसके बाद अपने क्लाइंट्स को डिलीवरी करने के लिए भी लोगों ने ले जाकर गुड्स वहाँ पे डिलीवर किए हुए हैं। तो ये सारे चारों मोड्स फुल्ली ऑपरेशनल हैं और चारों लोगों के फीडबैक बहुत पॉजिटिव थे। किसी प्रकार का कोई चैलेंज नहीं था, जैसे सर आपको बार बार बता रहे हैं। और इसमें गुड्स जो ले जाने के सेल के लिए उसके अंदर कोई लिमिट है, जैसे आप $1 मिलियन या $5 मिलियन बोल रहे हैं? ये दोनों के लिए लिमिट डिफाइंड है। तो जो सेल सेल के- परचेज डेफिनेटली वो भी उसी तरह से हमको करना पड़ेगा। एग्जीबिशन से रिलेटेड होगा तो $5 मिलियन, और इंडिविजुअल कोई खरीद के ले जा रहा होगा तो जो $1 मिलियन का है $1 वही। मिलियन। और इसका कोई टाइम फ्रेम है, कितने टाइम में जाके वापस आ सकते हैं? टाइम फ्रेम है पॉलिसी के जो प्रावधान है उसके हिसाब से। उसी के हिसाब से। जी। आप एक चीज नोट करेंगे, हैंड कैरी जो प्रोसीजर है उसमें ऐसे कोई इफ्स एंड बट्स नहीं है।
जैसे आप अगर एक्सपोर्ट प्रमोशन टूर के लिए जा रहे हैं तो वो एक अलग स्कीम है, उसके अलग कंडीशंस हैं। जैसे पांडे जी ने बताया कि उसके 1 मिलियन या 5 मिलियन की कंडीशंस हैं, वो उस पॉलिसी के लिए हैं। एक्सपोर्ट थ्रू हैंड कैरेज में देयर इज नो इफ्स एंड बट्स एनीवेयर। आप किसी भी चीज़ के लिए जा सकते हैं, आप वो सेल करने के लिए जा रहे हैं, दैट इज ऑल्सो फाइन। अब जैसे आपने बोला टाइम लिमिट का, एक री इम्पोर्ट में ऐसा होता है कि 6 महीने के अंदर वापस आता है तो उस पर ड्यूटी नहीं लगता है, तो वो कंडीशंस अभी भी होल्ड करेंगे क्योंकि वो एक अलग नोटिफिकेशंस हैं। ये तो बस एक रास्ता है लाने ले जाने का, जो अब खोल दिया गया है, जो पहले नहीं खुला हुआ था। तो वो जो अलग कंडीशंस है वो सब अभी भी अप्लाई होंगे, जिस जिस पर्पस के लिए आप लेके जा रहे हैं उस पर्पस के लिए। ठीक है सर केवल कैरियर्स बदला है यहाँ पे। आप कल शिप के माध्यम से, फ्लाइट के माध्यम से भेजते थे, आप यहाँ पे हैंड कैरी करके लेके जा रहे हैं, खुद कैरी कर रहे हैं, इतना ही केवल बदलाव हुआ है, बाकी कोई चेंजेस दूसरा कुछ नहीं है। So if we take our goods like $5 million worth of goods and बाकी हम लोग जो वापस लेके आते हैं that's $4.9 million. So the $100,000 is exempt on duty, or how would that work? Because if we are taking it over there and we sell it on the counter and then we get back the remaining goods, who would be the one who would tally it and who would be the one who is responsible for the question, like who do we approach? इंस्टेड अगर हम लोग ने एग्जीबिशन पे इधर से $5 मिलियन डिक्लेयर माइक नजदीक ले लीजिए आप। अगर हमने इधर से $5 मिलियन डिक्लेयर किया, वी कम बैक विद $4.9 मिलियन, सो द $100,000 पे जो ड्यूटी लगता है, विल इट स्टिल बी एप्लीकेबल? हाउ वुड दैट गो एंड हु वुड वी बी अप्रोचिंग इन दैट केस? इसके अंदर सिंपल चीज़ है, आपका सामान इंडिया में आ जाएगा, वो आप शिपिंग बिल यहाँ फाइल करेंगे, वो गुड्स एग्जामिन होंगे, उनको देखा जाएगा, उसमें जो डिक्लेयर्ड जो गया था और जो आया है उनको टैली किया जाएगा, मैच किया जाएगा। जो नहीं होंगे वो आप बोल देंगे कि ये हमारे सेल हो गए, तो उस पर जो आपका प्रोसीजर है एज पर द स्कीम जिसके अंदर आप लेके गए हैं वो एप्लीकेबल होगा। व्हाट आई मीन टू से इज दैट प्रोसीजर स्टिल स्टेज इंटैक्ट। ओनली ये एक रास्ता खोल दिया गया है, नया रास्ता सामान को। ये एक रिक्वेस्ट थी कि कई बार हमारे एग्जीबिशंस बहुत लास्ट मोमेंट पे होते हैं, हमें फटाक से जाना होता है, तो अब एयर कार्गो वगैरह से जाने में समय लग जाता है कई बार। तो ये माध्यम है कि अगर कल सुबह एग्जीबिशन चालू हो रहा है, आज रात को फ्लाइट पकड़ के दुबई पहुंचना है, तो आप पहुंच सकते हैं अपने सामान के साथ। बाकी अलग प्रोविजंस जो हैं, जो आप बोल रहे हैं कि अगर $100,000 का सेल हुआ है उस पर क्या ड्यूटी लगेगी नहीं लगेगी, दैट स्टिल होल्ड्स इंटैक्ट एज पर द पॉलिसी जिससे आप लेके जा रहे हैं। ओके, सो इट विल बी क्रॉस टैलीड आफ्टर इट कम्स ओवर। यस यस यस। ओके, नो वरीज, थैंक यू। हाँ जी। इसका सर वही उनका जो पॉलिसी चल रहा था एक्सपोर्ट्स के लिए, जो आपका एक्सपोर्ट्स के लिए जो इंश्योरेंस की पॉलिसी जो चल रही थी उसी लाइन पे आपको करना है। जैसे सर बार बार रिपीट कर रहे हैं, ये कैरियर का एक मोड ऑफ ऑपरेशंस बदला है, बाकी कोई चेंजेस नहीं हुए हैं। हाँ, I'm not handing over it to the Brinks, then who is covering the insurance? I myself have to cover the insurance separately for the आपको parcel? सेपरेटली करना पड़ेगा, करेक्ट? Okay. No, you will be handling your goods to your CHA. Then CHA will do all that insurance part will be done by the CHAs. No, but when I am carrying the goods on the airport or something, then No, also no, no. They will provide you. it's covered. Yes, yes. Okay. You just have to have a word with your clearing agents. Hello. Hi. Does the size of the parcel have to be within the overhead cabin luggage? मतलब वो आप खुद कैरी कर रहे हो तो आपको जो आपका कैबिन लगेज है उसमें फिट करना है, राइट? सो द साइज ऑफ योर पार्सल हैज टू बी अंडर दैट, इट हैज टू मैच द डायमेंशंस और अंडर दैट लिमिट, राइट? मैंने अभी तक ऐसा कभी प्रॉब्लम होते हुए देखा नहीं है, बट और नोटिफिकेशन सर्कुलर्स में ऐसा कोई कहीं पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर मैं समझ पा रहा हूँ तो जो कैबिन लगेज का एक साइज़ होता है, CISF का सिक्योरिटी के अंदर भी एक साइज़ होता है हैंड कैरेज का, आई गेस अगर उसके अंदर रहे तो इट विल बी बेटर, बट देयर इज नो सच रिस्ट्रिक्शन एज पर द पॉलिसी। Okay. And another thing is there a cost advantage when we do it like this, when we hand carry like this? Are we saving on cost also? That GJEPC is better to tell you. लॉजिस्टिक कॉस्ट तो पूरा आपका बच रही है ना, आप तो लॉजिस्टिक्स पूरा बच गया, या सो आप उस कंट्री को ट्रेवल कर रहे हैं अपने टिकट्स पे, वैसे भी अगर कुछ नहीं भी ले, खाली हाथ भी जाते तो भी आपका जो है सामान अलग से जो भी कॉस्टिंग लगती थी, सो आपका जो लॉजिस्टिक्स कॉस्ट है वो पूरा ही कट जाता है। वो बेसिकली यू आर सेविंग ऑन द एंटायर लॉजिस्टिक्स कॉस्ट बिकॉज यू आर हैंडलिंग इट योरसेल्फ।
क्योंकि आप खुद कैरी कर रहे हैं, जैसे अपना लगेज कैरी कर रहे हो, जैसे आप ज्वेलरी कैरी कर रहे हैं, अच्छा। तो दूसरी कॉस्ट उसमें कुछ इन्वॉल्व नहीं है। बट देन यू विल इनकर द ट्रैवलिंग कॉस्ट, हाँ, फ्लाइट टिकट आने जाने का, वहाँ रहने का, वो तो है ही। वो हिसाब आप लगा लीजिएगा कि किस में फायदा हो रहा है। And regarding the question of insurance, it is as recommended. आप एक बार BBC brings या मालका जो भी, because I don't think so customs has any role in that aspect. My question is to council. I have checked up with my insurance people. They have told me that in hand carry they are not allowing any insurance because there is no consequence how the person is handling, so they are not covering. आप इसको राइटिंग में हमें दीजिए, और कौन सी इंश्योरेंस कंपनी ने इसको डिक्लाइन किया है उसकी भी डिटेल्स दीजिए, हम डेफिनेटली उनसे टेकअप करेंगे। No, because normal policy is there. Whenever the person is hand carrying, they are not subsequently how he is going to handle and all that conditions. Only one thing is there. Where yesterday I spoke to them, what they were told that in case of travel strip policy, only, but there are so many conditions to be adhered. So I think if council take up this matter, it will be much interest of the trade at large. एग्जैक्टली जो अभी तक हैंड कैरी किए हैं लोग जिस हाई वैल्यू पार्सल्स को लेकर के, उन्होंने भी डेफिनेटली इंश्योरेंस पॉलिसीज अवेल की होंगी। हम उनके एक्सपीरियंस को एक बार फीडबैक उनके लेते हैं, हम डेफिनेटली अगर इस तरह के कोई रिस्ट्रिक्शंस है तो हम उस पर कुछ ना कुछ एक्शन जरूर करेंगे। थैंक यू। Good afternoon. Good afternoon. Sir, we have noticed that bond is required. Sorry? That is not mentioned over here. The bond is required for the hand carry. That formality has been missed out. Because we have done one parcel and the bond is required for to and fro. So once we do the export, bond is needed and then later on you have to be. So that is the one part. हैंड कैरी की बात कर रहे हैं? नहीं, One stamp paper you have to just give आप that kind जितना of. मुझे याद आ रहा है, आप एग्जीबिशन में, Yes, yes. मैंने This- वो आपका ब्रोच देखा था एक, Yes, right. आई रिमेम्बर यू। Yes, and the stamp paper also you अब वो बॉन्ड मेरे हिसाब से आप एग्जीबिशन में लेके ला रहे हैं, ले जा रहे हैं, उसके लिए रिक्वायर्ड I think affidavit or something you have to provide. That formality is, यस सर। so that is one. ये एग्जीबिशन के पर्पस के लिए है। रिगार्डिंग, मतलब मेरा ये कहना है कि हैंड कैरेज का तो एक बस रास्ता खोला गया है, आप उसको एग्जीबिशन पर्पस के लिए लेके जा रहे हैं, तो एग्जीबिशन के जो नॉर्म्स हैं, जो नोटिफिकेशन है, वो अभी भी फॉलो होंगे, ये चीज़ें। हेलो जी सर, सपोज मेरा एक्चुअली एक शिपमेंट है, थोड़ा जोर से बोल सकते हैं आप? मेरा एक एग्जीबिशन हैंड कैरी है डे, और फ्राइडे मैंने शिपिंग बिल पुटअप की, इनवॉइस पे पैसेंजर डिटेल्स, PNR, ऑल ई टिकट वगैरह सब इनपुट करके मैंने शिपिंग बिल करके फ्राइडे को क्लियरेंस भी करके हो गया। सपोज इन द केस अभी ट्यूसडे मेरा मॉर्निंग में फ्लाइट है, ट्यूसडे मॉर्निंग जी, और जो पैसेंजर का डिटेल्स मैंने वहाँ पे फिलअप किया शिपिंग बिल पे, इनवॉइस पे, सपोज इन द केस कुछ वो पैसेंजर नहीं अवेलेबल है, तो वो केस में क्या कर सकते हैं सर? उस केस में कुछ बात ये जो मैंने स्टैंडिंग ऑर्डर और पब्लिक नोटिस आपको रेफर किए हैं पिछले स्लाइड के अंदर, इसके अंदर आप देखेंगे बिल ऑफ एंट्री को अमेंड करने या शिपिंग बिल को अमेंड और कैंसिल करने के भी प्रावधान हैं। जैसे कई बार आपने बोला कि पैसेंजर का नाम और डिटेल्स चेंज हो गई, तो यू विल गिव अ रिप्रेजेंटेशन सेइंग दैट कि ड्यू टू सो एंड सो रीजंस ऐसा हो गया है, तो आई थिंक सो उसके अंदर अमेंड करने का ऑप्शन रहेगा। कई बार फ्लाइट्स कैंसिल हो जाती हैं, कई बार फ्लाइट की डिटेल्स चेंज हो जाती है, दैट ऑल आर अकाउंटेड इन अमेंडमेंट्स तो सर मेरा एज पर द एग्जिस्टिंग लीगल प्रोविजंस। बट उसमें टाइम मतलब सब मेरा कनेक्टिंग वेसल सॉरी फ्लाइट है ट्यूसडे मॉर्निंग, तो मंडे नाइट मुझे मालूम पड़ा कि ऐसा ऐसा है, सडनली एक इलनेस मतलब कुछ हो गया उसको। तो वो केस में सर कुछ मतलब कुछ ऑप्शन? एक ही ऑप्शन है कि अब आप जितने जल्दी हमारे पास आएंगे, हम उतने जल्दी अमेंड करेंगे, और जो नेक्स्ट अवेलेबल फ्लाइट है उसमें आपके नेक्स्ट व्यक्ति को बैठाएंगे। तो उसमें सर टाइम पीरियड कितना, मतलब क्योंकि एग्जीबिशन का ऐसा कट ऑफ टाइम रहता है ना, तो इसके लिए सर इंटरव्यू या आप जो सिचुएशन बता रहे बहुत एज केस सिचुएशन है। अमेंडमेंट जो इन्होंने बताया है, अमेंडमेंट रूटीन में बिल ऑफ एंट्री में होता है, आपको भी पता है, शिपिंग बिल में भी होता है। जो इंद्रवीर बताने की कोशिश कर रहा है कि हमारा प्रोसेस जो है बिल ऑफ एंट्री और शिपिंग बिल का सेम है। अब आप सोचिए कि एक्सपोर्ट के टाइम पे अगर आप अपना मेन एलिमेंट जो है वो पैसेंजर नेम है, उसका PNR है
और उसका ई टिकट नंबर है, जो कि इस स्पेशल हैंड कैरी बिल ऑफ एंट्री में वो मैंडेटरी है। अपार्ट फ्रॉम दिस और बाकी आपके ईजीएम डिटेल्स वगैरह कुछ नहीं होते, पीएनआर मेन होता है आपका, फ्लाइट डिटेल पीएनआर से कैप्चर होता है। अगर आप उसी को अमेंड कर देंगे तो बिल ऑफ एंट्री का सबसे मेन एलिमेंट आपने अमेंड कर दिया। इट इज सिस्टम में, दिस इज अ न्यू सिस्टम, अभी तक 45 सच कंसाइनमेंट्स इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हुए हैं, ऐसा एज केस हमने अभी तक नहीं देखा है। तो फॉर श्योरिटी वी कैन नॉट से कि अमेंडमेंट हम अलाउ कर सकते हैं। आई वुड रादर सजेस्ट कि आप जिसकी तबीयत सही हो उसी का टिकट कराएं, उसी को लेके जाएं। सडनली सर इन क्योंकि केस लास्ट मोमेंट में अगर आपका चेंज हो जाएगा और सिस्टम नहीं अलाउ करेगा, तो वी शुड नॉट कंसिडर कि ये मतलब वील ट्राई आवर बेस्ट, बट हो सकता है कि ऐसा हो या ना भी हो। थैंक्स सर। Hello. Yeah. Good afternoon, sir. Good afternoon. Actually, I just wanted to speak just on behalf of that. For example, if I'm exporting for the first time, अगर मैं दुबई प्रोडक्ट में हैंड कैरी करके लेके जाता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं 1 kg लेके गया और वहाँ पे मैंने 500 ग्राम्स जो प्रोडक्ट्स है वो सेल कर दिया, जो बाकी का जो 500 ग्राम्स है वो मैं वापस से यही चैनल से लेके आ सकता हूँ? इज दिस द सेम प्रोसीजर दैट वी फॉलो व्हाइल वी कम बैक टू इंडिया फ्रॉम दुबई? You can follow, there is no problem in that. So this same procedure and this हाँ, same आप बोल रहे हैं मैं हैंड कैरेज से गया, right, आधा गुड्स सेल हो गए और रिमेनिंग आधे गुड्स में हैंड कैरेज से वापस Right. लेके आ गया। यस, this परफेक्टली is फाइन। doable, right? यस यस Okay, great, thank you. जी। जो पोर्ट पे हम लोग जा रहे हैं, जैसे यहाँ पे यहाँ से दुबई जा रहे हैं, तो दुबई जाने के बाद कस्टम का प्रोसीजर हमको ही फॉलो करना है कि क्या करना है? हैंड कैरी से यहाँ से लेके तो चले गए, फिर दुबई के जो भी पोर्ट पे हम लोग जाते हैं, जैसे हांगकांग गए, दुबई गए, यूएसए गए, तो वो वहाँ के कस्टम्स का फॉलो कैसे? वहाँ की जो पॉलिसी होगी उसको आपको वहाँ की पॉलिसी के हिसाब से करना पड़ेगा। उसमें हमारा इंडियन कस्टम नहीं, आपका गुड्स जो आप एक्सपोर्ट करते हैं, जो प्रोसेस वहाँ जैसे एयरपोर्ट में आप जाएंगे एग्जीबिशंस के लिए लेके जाते हैं, तो वहाँ पे उनको बॉन्ड दे के या जो भी सिस्टम से उसको आपको वहाँ के काउंटर पार्ट से जानना पड़ेगा। उसमें हम यहाँ का कोई रोल नहीं आएगा किसी भी कंट्री के लिए। हाँ, डॉक्यूमेंट दिखा सकते बिल्कुल एग्जैक्टली। सर, जितना मैंने ट्रेड से पूछा है, जब सामान वापस आता है इंडिया में, तो कई बार मैंने ये भी पूछा है कि अदर कंट्रीज़ में कितना फैसिलिटेशन है, और मुझे कई बार बताया भी गया है कि प्रोसेस एग्जिस्ट्स देयर इन अदर कंट्रीज एंड दे आल्सो फैसिलिटेट इट एट अ वेरी क्विक बेसिस। दिस इज नॉट फ्रॉम ऑफिशियल एंगल बट फ्रॉम जनरल पार्लेंस। मैंने जब पूछा कि क्या फॉरेन कंट्रीज में और एफिशिएंट प्रोसेस है, तब मुझे ये पता पड़ा कि दे आल्सो डू इट वेरी क्विकली। हाँ, एग्जैक्टली। वो आपको जिस कंट्री में इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है उसको एक बार आप देखेंगे तो यू विल गेट टू नो दैट। यस, प्रोविजन नहीं था, बट आज की डेट में प्रोविजन हो गया है तो वी कैन अलाउ दिस। बट इन केस अगर आप ऐसे कंट्री में जा रहे हैं जहाँ पे हैंड कैरी का प्रोविजन नहीं है, वी वुड रेकमेंड आप एटीए कार्ने करा के ले जाएं, एग्जीबिशन कराएं, फिर वापस ले। Sir, my question is like for the insurance, is it covered till the port of destination or is like till the airport over here? Like, I think so. This question will be directed towards GJEPC. कई लोगों के ऐसे कॉमन क्वेश्चंस थे रिगार्डिंग इंश्योरेंस कि हु विल बी और द इंश्योरेंस, व्हाट विल बी द एग्जैक्ट निटिग्रिटीज ऑफ इंश्योरेंस। आई थिंक सो आपके जो इंश्योरेंस प्रोवाइडर्स हैं, एक बार आप उनसे भी संपर्क कीजिए, एक बार GJEPC को भी ये क्वेरी रेज कीजिए, बिकॉज आई थिंक कस्टम हैज़ नो सच रोल एज सच इन दैट। तो पांडे जी इज हियर, मिथिलेश पांडे जी फ्रॉम GJEPC, वो आपको मदद करेंगे इसके अंदर। गुड आफ्टरनून सर। अभी हम लोग गुड्स लेके गए हैंड कैरी के वे से, और लाते टाइम कुरियर के मोड से ला सकते हैं कि हैंड कैरी से ही लाना पड़ेगा वो गुड्स को रिटर्न लाते टाइम? हैंड कैरी ही रखिए, दैट विल बी बेटर, क्योंकि वो आपका लाना ले जाने में देयर विल बी अ लिंकेज। सर कहना चाहेंगे इस पे? कुरियर में ना एक्सपोर्ट विदाउट लिमिट कर दिया है, इंपोर्ट इज रिस्ट्रिक्टेड और जेम्स एंड ज्वेलरी आप लोगों को पता होना चाहिए। इंपोर्ट वही अलाउड होता है जो आप एक्सपोर्ट किए। अगर आपने कुरियर से एक्सपोर्ट किया, सिर्फ वही गुड्स आपको कुरियर से वापस लाने दिया जाएगा। आप कुरियर से कहीं, इसीलिए दैट इज वाई अभी तक जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर कुरियर पे नहीं खुला है, सिर्फ एक्सपोर्ट के लिए खुला था 10 लाख लिमिट तक। इस बार के बजट में
अनलिमिटेड कर दिया फॉर एक्सपोर्ट। इंपोर्ट इज स्टिल रिस्ट्रिक्टेड, तो आप हैंड कैरी से एक्सपोर्ट करके वापस कुरियर पे नहीं ला सकेंगे। नहीं तो ब्रिंक्स और लेम्यूर फ्रेट फॉरवर्डर रहते हैं, उनके थ्रू भी नहीं ला सकते। नहीं, आप डायरेक्ट शिपमेंट फाइल कर लीजिए, जैसे PC4 में आप इंपोर्ट नॉर्मल करते हैं, आप वहाँ पे ब्रिंक्स को दे दीजिए, ब्रिंक्स ले आएगा, उसमें आपका बिल ऑफ एंट्री में शिपिंग बिल का रेफरेंस रहेगा जो यहाँ पे आपने हैंड कैरी में किया। दोनों वे से यूज कर सकते हैं। वही इंद्रवीर बताने की कोशिश कर रहे हैं, ये सिर्फ एक मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट मिला है आपको डिफरेंट, रेस्ट एवरीथिंग एल्स इज सेम। ठीक है, गुड इवनिंग। आपका डाउट क्लियर हो गया? आपके जाने का रास्ता हैंड कैरेज का था, आने का रास्ता कुरियर नहीं हो सकता क्योंकि कुरियर में इंपोर्ट नहीं है। तो आप नॉर्मल बिल ऑफ एंट्री जिसे एयर कार्गो से आता है आपके BBC ब्रिंक्स के द्वारा वो आ जाएगा, या फिर आप स्वयं हैंड कैरेज लेके भी आ सकते हैं। आ सकता है, कोई समस्या नहीं। पीछे मेरा क्वेश्चन रहेगा, सॉरी हाँ जी, मेरा क्वेश्चन रहेगा कि सिक्योरिटी मेजर के लिए ये एयरपोर्ट में मेरा एक रिसेंटली एक एग्जीबिशन शिपमेंट था। हाँ। उसमें रिटर्न पे टाइम पे एयरपोर्ट पे जो डिटेंशन होने का बाद वहाँ पे कोई सील कस्टम सील का सिस्टम नहीं है, जस्ट एक ग्रुप में ऐसा बांध के दे देते हैं। अगर ये एरिया में आप थोड़ा ध्यान देके मीन्स प्रॉपर कस्टम सील होना चाहिए वहाँ पे जी। और वहाँ पे लैंड होने के बाद उनको मेरा जो बॉसेस को एटलीस्ट 2 घंटा रुकना पड़ा। अच्छा। देयर इज नो प्रॉपर ट्रेन पीपल ओवर देयर। जी। इफ यू कैन इम्प्रूव दिस एरिया देन इट विल हेल्प अस। सो व्हाइल गोइंग इज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस, व्हाइल कमिंग बैक इज अ लिटिल। आपका अराइवल का समय किस समय का था? इज इट अराउंड द नाइट? नाइट ओनली। नाइट में 2-3 बजे के आसपास, 4-5 बजे। यस, नियर अबाउट। जी। इस पे ऑलरेडी काफ़ी सोच और मंथन हो चुका है कि कई बार रात में रश आवर्स रहते हैं, रात को 2 से लेके सुबह 6-7 बजे तक। उस दरमियान एयरपोर्ट ने डेडिकेटेड 2-3 ऑफिसर्स को ये चार्जेस दे रखे हैं टू डू इट क्विकली, और इस पे कार्रवाई की जा रही है। तो मेरे हिसाब से आपका आगामी 1-2 महीनों में जो एक्सपीरियंस रहेगा वो और बेटर होगा, और प्रॉपर कस्टम सील वगैरह लगाना, सूतली से बांधना वगैरह, वो सारा प्रोसीजर अच्छे से। Because it's a 10-12 crore shipment, we are just handovering without any seal. Right. I'll communicate the message to. Thank you. बिजली कस्टोडियन जो है यहाँ पे, तो उन्होंने एक अलग से बैग प्रोवाइड की हुई है, उसको सील करते हैं, उसमें कोई सील करती नहीं। बिगिनिंग में कुछ चैलेंजेस आए थे, लेकिन उसके बाद में सब चैलेंजेस नहीं है। सर आपका कब का पार्सल रहा है? वो आपने दिसंबर का। एक बार पूरा डिटेल्स आप हमको मेल करिए, देख लेते हैं क्या ऐसे चैलेंजेस था। जनरल प्रोसीजर जो एयरपोर्ट पे है, जब भी कोई सामान वेयरहाउस में जाता है, बाकायदा उसमें लाख की सील लगती है, वो बंद होता है, प्रॉपर प्रोसीजर जाता है। हाँ। एक प्रॉब्लम ये हुआ था, मतलब सील वगैरह प्रॉपर था, लाख का सील था, पुलिस हमारे साथ थी, हमको वेयरहाउस तक लेके गए, पार्सल ड्रॉप करा, वहाँ से हमको बाहर में मतलब जो सिक्योरिटी चेक का गेट था वहाँ से हमारे छोड़ा। प्रॉब्लम ये हुआ था कि वहाँ मुझे 4 घंटा। इन्हें एक माइक दे दीजिए, बाकी लोग भी सुनना चाहते हैं आपका क्या एक्सपीरियंस था या क्या प्रॉब्लम थी। एक्सपीरियंस सर बहुत अच्छा था। जैसे हम लोग यहाँ से लेके गए, पहले हम दिल्ली से करते थे, सबको पता है। अभी हम यहाँ से बॉम्बे से चालू किया था, लेके जाने के टाइम पे प्रॉपर एक्सपीरियंस था। जैसे सर का क्वेश्चन था कि वो कंट्री के अंदर एक्सपोर्ट हैंड कैरी है कि नहीं, तो वो भी होता है। हम कुवैत, बहरीन 2-3 जगह लेके गए थे, वहाँ पे भी होता है, वहाँ पे भी वेरी इजी है, जैसे यहाँ पे वैसे वहाँ पे। प्रॉब्लम ये था मेरे को, जैसे अभी इन्होंने बोला कि सील लाख वगैरह वो सब कुछ था वहाँ पे जब हम गए थे। प्रॉब्लम ये था कि वहाँ जो ऑफिसर्स थे इज वेरी अनट्रेन्ड, मतलब उन लोगों को ट्रेनिंग नहीं था। एक डिटेंशन रिसिप्ट के लिए उन्होंने 4 घंटा लिया। सेकेंड थिंग, मेरा पार्सल उन्होंने मुझे बोला था कि आज ही पहुंच जाएगा शाम को, जबकि वो दूसरे दिन भी नहीं पहुंचा था पार्सल। दूसरे दिन में पूरा दिन यहाँ एक्सपोर्ट में था, शाम को 5 बजे तक पार्सल नहीं आया था। 6 बजे मुझे बोला कि पार्सल आ गया, 1 घंटे में आपको क्लियरेशन वगैरह सब कुछ करके देते हैं। बट हम लोग को फिर उस पार्सल को वापस बहुत दूर लेके जाना था, तो हमने मना किया और हम दूसरे दिन आए। इट मीन्स 2 दिन लगा मेरा पार्सल खाली यहाँ आने के लिए। तो वो उसके ऊपर थोड़ा सा एक बार आप कीजिए। सर एग्जैक्टली बिगिनिंग में सब चैलेंजेस थोड़े बहुत थे, जैसे सर ने बताया कि एकदम नया प्रोसेस था,
जब नई चीज़ें शुरू होती हैं तो कोई भी कम्युनिकेशन अगर इस यहाँ पे मैं आपको कुछ काम में बता दूँ, वहाँ तक पहुँचते पहुँचते शब्दों की मीनिंग बदल जाती है। तो धीरे धीरे चीज़ें आगे फॉरवर्ड हो रही है। जो आपने चैलेंजेस बताए, इस तरह के चैलेंजेस और भी किसी को आए थे, उन्होंने हमको अप्रोच किया। 2 जन थे, हम दोनों साथ में ही थे, सेम ट्रैवल था, सेम फ्लाइट में थे, सेम कंट्री से थे, सेम टाइम पे आए थे। दूसरे दिन भी हम दोनों सेम टाइम पे यहाँ पे थे, पर हमारा पार्सल नहीं आया था। उसके दूसरे दिन जब पार्सल आया तब सारा कुछ प्रोसीजर हुआ। तो चूंकि यहाँ पे बड़ी ऑडियंस है, मैं आपको बता दूं कि अगर इस तरह से आप हैंड कैरी कर रहे हैं और आपको 24 आवर्स के अंदर यहाँ पे नहीं मिल रहा है, तो हमें ध्यान में लाएं, क्योंकि कस्टम की इंटायर टीम, एटलीस्ट एपीएससी जो यहाँ पे टीम बैठी हुई है, और बहुत ही एग्रेसिवली और खुद पर्सनल लेवल पे फॉलो करते हैं। एडिशनल सर कई बार इस चीज़ों को कि ये सबसे फास्टेस्ट ढंग से होना चाहिए और कोई किसी को किसी प्रकार के हर्डल्स नहीं आना चाहिए। इसको खुद पर्सनली इंश्योर कर रहे हैं। इवन रात में जब बिगनिंग में हमने स्टार्ट करवाए तो रात के 1:30-2 बजे तक भी जो कोऑर्डिनेशन चल रहा था, इंटायर टीम उसको कोऑर्डिनेट कर रही थी। तो पहले की जो ब्यूरोक्रेसी या कुछ इस तरह की चीज़ें थी वो बिल्कुल आप इस समय ना के बराबर है, और चीज़ें स्मूथली इस पर्टिकुलर मोड को ऑपरेशनल करने के लिए और उसको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट करने के लिए टीम वर्क कर रही है। आपके चैलेंजेस डेफिनेटली हम लोग नोट किए हैं और मुझे लगता है कि रेक्टिफाई हो चुका है, नहीं है कोई बात। हाँ, क्योंकि जो बंदे वहाँ पे रुके थे, सैटरडे संडे का उनका इशू था, उसको भी हमने टेकअप किया और सॉर्ट आउट हो गया है। सर आपका डिपार्टमेंट उसको सॉर्ट आउट कर दिया था। फिर जो इस तरह के चैलेंजेस थे कि वहाँ पे ऑफिसर्स कॉर्पोरेट कोई नहीं कर पा रहे थे या कोई दूसरे काम में बिजी थे, तो मैं आपको बताऊं कि पर्सनली उन्होंने अपने हाथ से रसीद बनाने का, जो सिस्टम से नहीं बना था, पर्सनली हाथ से रसीद बना करके भी लोगों को वहाँ से जाने के लिए कहा और एक यहाँ से क्लेम करने के लिए। तो जो छोटी छोटी दिक्कतें आ रही, अगर आप लोग कंटिन्यूअस इस प्रोसेस को अडॉप्ट करेंगे, इस पे अधिक से अधिक काम करेंगे, आपके चैलेंजेस बार बार आएंगे, तो निश्चित तौर पे 6 महीने के बाद आपके पास में शायद इस मोड ऑफ ऑपरेशंस में कोई चैलेंजेस नहीं रह जाएंगे। कम से कम आप इजीली लेके जा सकेंगे, लेके आ सकेंगे, जैसे यहाँ मार्केट में आप सेल और परचेज कर पा रहे हैं। तो आपके फीडबैक लेकिन जरूरी है। कस्टम को अगर फीडबैक आप नहीं दे पा रहे हैं वहाँ पे, तो एटलीस्ट जेपीसी को मेल करें, हमें इंटीमेट करें। हम डे टू डे बेसिस पे कस्टम डिपार्टमेंट से संपर्क में रहते हैं और हमारे चैलेंजेस एवरी 15 डेज पे पीटीएफसी की मीटिंग होती है, जिसको कमिश्नर सर शेयर करते हैं, एडिशनल सर उसमें होते हैं, एक मुद्दे पे पर्सनली हमारा डिस्कशन होता है। और नेक्स्ट पीटीएफसी मीटिंग से पहले हमने देखा है 99% हमारे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन मिल जाते हैं। पहले पीटीएफसी मीटिंग होना ये बहुत दुर्लभ चीज हुआ करती थी कि कब होगी, कहाँ होगी, इंफॉर्मेशन आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन अभी फिक्स टाइम, आप अपने प्रश्न हमारे पास भेजिए, हम आपके प्रश्नों को लेके जाएंगे और आपको समाधान मिलेगा। थैंक यू। आई हैव अ क्वेश्चन, जस्ट अ सेकंड। आपका जो क्वेश्चन था उसके रिस्पेक्ट में मैं 2 चीजें बताना चाहूंगा। नवंबर के महीने तक मैं खुद एयरपोर्ट पे पोस्टेड था। जब ये पॉलिसी स्टार्ट हुई थी उस शुरुआत में हिकअप्स थे, क्योंकि ऑफिसर्स को ये नहीं पता था कौन सील लगाएगा, कहाँ पे पैकेज खुलेगा, कहाँ बंद होगा, कैसे उसकी बिल ऑफ एंट्री फाइल होगी। लेकिन आपका जो एक मुद्दा उठा था रिगार्डिंग द ट्रेनिंग ऑफ ऑफिसर्स, इस चीज को हमारे प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर मैडम के द्वारा बहुत स्ट्रांगली फॉलो अप किया जा रहा है और रेगुलरली एयरपोर्ट के ऑफिसर्स को इससे अपडेट किया जा रहा है। तो और जैसे पांडे जी ने बताया कि कई बार सिस्टम में भी कुछ ग्लिच हो जाता है, तो ऑफिसर ऑन द स्पॉट मैनुअल डिटेंशन रिसीट भी इशू कर देते हैं हाथ से लिख के। उद्देश्य ये रहता है कि फटाक से उस पैसेंजर को रिलीज किया जा सके, सामान कस्टडी में आ गया उसके बाद पैसेंजर को रिलीज किया जा सके। सेकेंड चीज जो मैं एक एग्जांपल आपको बताना चाहूँगा। कल की बात है, बीडीपी से सुरेंद्र जी मेरे पास आए थे करीबन 12 बजे के आसपास, ये कहने कि सर एक पार्सल रात को आ चुका है एयरपोर्ट पे, हमारे पास इंफॉर्मेशन है। मेरे पास में इंस्पेक्टर रैंक के ऑफिसर्स की कमी थी। इन स्पाइट ऑफ दैट हमने इमीडिएटली एयरपोर्ट पे कोऑर्डिनेट किया, वहाँ के ऑफिसर से पास बनाया। मैंने बोला कि 1 घंटे में हमारा ऑफिसर पहुँच जाएगा, 1 घंटे में आप पास रेडी कीजिए। विदिन 1 आवर पास बन गया। वहाँ उनको आधा घंटा लगा उसका कागजी कार्रवाई करने में, और उसके 1 घंटे के अंदर अंदर 2.5 घंटे के अंदर पार्सल बीडीबी में आ चुका था। तो हम लोग इसको फॉलो अप करते हैं, और आप जितना जल्दी, अगर इनकेस आपको कहीं डिले होता है 1 दिन का या आधे दिन का या 1.5 दिन का, आप इमीडिएटली बीडीबी को, जीजेपीसी को बताइए, एंड जो भी कमी आ रही है हम इमीडिएटली उसको रेक्टिफाई भी कर रहे हैं ऑन द स्पॉट। ऐसा नहीं कि आगे देखेंगे, हम ऑन द स्पॉट उसका इलाज करते हैं। अभी कोशिश यही हो रही है। Sir, I have multiple questions. इस पे फर्दर और ऐड करना था, मैं आपका पॉइंट समझ सकता हूँ कि 4 घंटे लग गए आपने जैसे बताया।
इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट DJEPC ने पॉलिसी के टाइम पे ही उठाया था। उसमें क्या होता है, जब आप गुड्स लाते हैं और एयरपोर्ट में प्रेजेंट करते हैं, आप समझिए ये एक अलग पोर्ट है। एयरपोर्ट में सिर्फ पैसेंजर डील होता है, गुड्स नहीं डील होता है। नॉट इतना स्पेशलाइज्ड गुड्स तो होता ही नहीं है डील। जब वहाँ पे यहाँ से तो हम आपको पूरा सील करके बॉक्स दे देते हैं, ही ओनली हैंड्स इट ओवर टू यू व्हेन यू आर गोइंग। उसे कुछ नहीं करना, वो सिर्फ बॉक्स उठाएगा, आपको पकड़ा देगा। बट जब गुड्स वापस आते हैं, बिकॉज ये 45/17 का भी होता है, जिसमें कि आप कुछ गुड्स सेल करके आ गए, मान लीजिए 1000 कैरेट ले गए, 500 कैरेट लाएं। अब आप आते वक्त तो डिक्लेयर करोगे 500 कैरेट आए हैं। एक एनेक्सचर में फॉर्म है जहाँ पे ये डिक्लेरेशन होता है। DJEPC का सजेशन ये था कि लेट द इम्पोर्टर हु इज कमिंग, उसके डिक्लेरेशन के बेसिस पे ही गुड्स आगे बढ़ा दिया जाए। बट जब बोर्ड ने पॉलिसी बनाया, उन्होंने बोला जब कस्टडी कस्टम्स लेगा, इवन इफ हमें मटेरियल नहीं चेक करना है कि ये SI है या VBS है या इसका क्या कैरेट है या सर्टिफिकेट नंबर क्या है, बट मूल तौर पे उसकी क्वांटिटी कितनी है, मोटा मोटी क्या डिस्क्रिप्शन है वो लिखना है, वो इंपोर्ट के टाइम पे फ्रेश हो जाता है। अब आप मान लो लेके आते हो 500 कैरेट, जब PC4 वो सामान आया वो हो गया 490 कैरेट। आप बोलोगे मेरा 10 कैरेट कहाँ गया? हु इज having the custody of the goods? With the custodian and escorted through customs officer. Therefore, it was a conscious call कि import के टाइम पे आपकी खुद की भी तसल्ली रहेगी, मैंने अपने सामने 500 कैरेट मेजर कराया और सामने दे के आए। अब फॉर एग्जाम्पल, आप चले अपने दुबई से एग्जीबिशन के बाद, आपने अपने बैग में 500 कैरेट डाले, उसी डब्बे में आपको किसी ने ट्रैक कर लिया वहाँ से कि ये हैंड कैरी में लेके जा रहे हैं। उसने आपका बैग एक्सचेंज कर लिया, मान लीजिए उसने नकली हीरे रख दिए या कम क्वांटिटी के हीरे रख दिए। आपने तो बैग खोला नहीं, आपने अपने कस्टडी में दे दिया विदाउट लुकिंग एट द गुड्स एट एयरपोर्ट। जब PC4 में वो खुलेगा, वो पूरा सामान चेंज हो चुका है। आप क्या करोगे? कस्टम्स ने कर दिया, फालतू में सबको परेशानी होगी। दैट इज़ वाई आपके आँख के सामने वो देखना चाहते हैं। एंड आई एग्री, धीरे धीरे हम ऑफिसर्स को ट्रेन कर रहे हैं। ये इतना सिंपल कमोडिटी नहीं है कि कोई भी तुरंत जो पहली बार हैंडल करता है उसे तो समझ ही नहीं आता कि क्या है ये। ही वुड नॉट नो एनीथिंग। एग्जैक्ट। एयर से है। बात वो नहीं है, बात वो है कि उस दिन तो पार्सल चलो BDB नहीं आएगा, अब नेक्स्ट डे तो आ जाना चाहिए। that operational thing we'll look into it. We'll ask BDB, आप रेगुलर इंश्योर करें। petition file नहीं हुआ होगा। नहीं हो गया, सेम डे ही हो गया। That aspect we have taken your request. We'll make sure initial time. That was in the month of December. नहीं, even if So that why nothing was. and anyway, if you have any issue, please flag it directly to the customs officer or to JJEPC. But I think I have been able to sufficiently explain the logic why goods are to be seen at airport. Aircraft की आप अभी इंश्योरेंस कंपनी में जाना, and the problem that you are facing, वो आपको they will give you 10 more problems. They'll say goods exchange at airport, goods exchange within flight में, long flight में कि आप सोए, खाना खा के उठे, आपका सामान बदल गया. There would be umpteen number of things that might happen, and that is why insurance will be very careful before insuring hand carriage. See, so that is why also one of the aspect is when you hand over the goods, the identity of the goods will be established in your presence, not a bag which you have brought and simply a seal is put on it. Because of bag में क्या है नहीं है, no one knows. So that's. Thank you, sir. Thank you. So, sir, I have multiple questions about this particular procedure. Generally, what happens whenever we plan these exhibitions, they are linked with multiple destinations. We are entering to one country and returning back from some other country.
Is that okay, perfectly fine with the current procedure? And the other question is, each person who is traveling has a $5 million limit, or overall exhibition limit is $5 million? Overall. Okay, so irrespective of the people traveling to respective country would be 5 million. आपको एक एग्जीबिशन के लिए DGAPC एक परमिशन इशू करती है, आपको पता होगा। ओके, इसमें सारी चीज़ें, सारे टर्म्स और कंडीशंस प्रॉपर्ली डिफाइंड है। आप उससे एक बार रीड कर लेंगे तो रेडी आपको आ जाएगा। Okay, thank you. This multiple destination returning is perfect. सर, एक एग्जीबिशन के लिए नहीं होता है परमिशन, मल्टीपल भी हो सकता है। If it is back to back, वही goods को वो कैरी कर रहा है। So one goods का जो उनका कंसाइनमेंट होता है, उसके लिए उनको एक परमिशन होती है। If he is participating in 3 exhibitions back to back और वही goods को वो कैरी कर रहा है, तो वो एक परमिशन उनको मिलता है। But उसका कैप फाइनल नहीं रहेगा। You cannot engage that because there are 3 exhibitions, 15 मिलियन ऐसे नहीं होगा, वो फाइनल नहीं रहेगा। मुझे लगता है कि आपके अधिकतर प्रश्नों के उत्तर मिल चुके हैं। अभी कोई प्रश्न बाकी है? सर, आई हैव गॉट अ क्वेश्चन। मैंने रिसेंटली अभी 2-4 दिन पहले इसके बारे में इंक्वायर किया था, बिकॉज अपेरेंटली एक एग्जीबिशन पे मुझे माल शिप करना था और उसका कुछ कट ऑफ टाइम होता है एंड आई हैड क्रॉस दैट डेडलाइन। तो मेरे को किसी ने बोला कि आप हैंड कैरी कर लो, इट माइट बी ईजियर एंड फास्टर टू डू दैट। नाउ मैं जो अभी तक के सेंटेक्स में समझ पाया हूँ, दिस इज अ वाइबल ऑप्शन टू गेट इट एट अ वेरी चीपर प्राइस एज वेल एंड अ फास्टर रूट। तो मैंने उसके लिए जब भी मेरे CHA को पूछा, आई आस्क्ड इन DVC फॉर दिस, मेरे को CHA ने जिस तरीके से बताया कि एक तो इसमें 10,000 की आपकी तकलीफ हो सकती है। आई वाज द वेरी फर्स्ट टाइम फॉर दिस, आई हैव नेवर डन दिस हैंड कैरी बिफोर, बट अपेरेंटली मैंने बोला चलो मेरे को करना ही है, लेट्स गो थ्रू द ट्रबल एंड आई वांट टू डू इट। तो मेरे को सर जो चार्जेस बताए गए ना, तो उसको जब भी व्हेन आई वाज ट्राइंग टू ऑफसेट इट विद द कार्गो शिपमेंट के अगर मैं उसका लेट फी का रश में भी भर दूँ, तो दे वर नॉट एबल टू मैच अप। नाउ इफ यू कुड गिव मी अ लिटिल क्लैरिटी ऑन दिस कि आर द चार्जेस एज exorbitant as these guys are telling, or they are not, because हम लोग यहाँ से अगर normally cargo में shipment लगाते हैं, the CHA is hardly taking 4-5,000 rupees. Okay, मेरे को यहाँ पे sir around ₹1,00,000 का charge बताया गया just for the clearance, and when you're gonna get it back. This is what I was being told. कुछ ऐसा लग नहीं रहा था कि कुछ बच रहा है, because that's what the CHA explained to me also. उन्होंने जिस तरह से प्रेजेंट किया as if you are not going to save anything by doing this. This process of hand carriage, जो आपने फर्स्ट पार्ट था आपका क्वेश्चन का, कि आपका जस्ट कट ऑफ लिमिट आ गया था और आपको इमीडिएटली लेके जाना था, इस प्रोसेस का मेन पर्पस वही है कि आप फटाफट ले जा सकें, आपको पूरा लॉजिस्टिक्स के साथ कोऑर्डिनेट करना वो सब ना करना पड़े, आप इमीडिएटली अपना नेक्स्ट फ्लाइट पकड़ी और सामान लेके चले गए क्लियरेंस करा के। Second question regarding CHA charges, that I don't think so, वो मेरा customs के angle से कोई उसमें concern है, that you will have to coordinate with your CHA. So reflecting on that sir, मेरे को जो CHA ने बताया, CHA बता रहा था कि मेरे को तो आप जो कार्गो में काम कर रहे हो मेरे को यहाँ पे भी वही करना है। उसने मेरे को एक पूरा लिस्ट बताया कि ये चार्जेस इनका है, ये चार्जेस कस्टम्स का है, वेयर हाउसिंग का इतना खर्चा लगेगा। ही गिव मी एन एंटायर लिस्ट एंड ही वाज लाइक कि भाई इसका इतना इतना आप टोटल मार लो, आपको उतना ही मिलेगा जितना मैं बता रहा हूँ। एक बार वो लिस्ट भी आप शेयर करिएगा, उसको भी एग्जामिन करवा लेते हैं क्या था CHAs के क्या लिस्ट है, कहीं ऐसा तो नहीं उनके ही चार्जेस ज़्यादा हों। राइटिंग में आप रिटर्न में शेयर करिए। Yes, of course, I have the email. क्योंकि हैंड कैरीज का मकसद यही है कि आपकी कॉस्टिंग कम हो। अगर उसमें कॉस्टिंग बढ़ रही है तो फिर उसकी रिलेवेंसी खत्म हो जाती है। और सरकार, अगर आपने बजट स्पीच सुना होगा तो आप देखिए उसमें भी हैंड कैरीज और ये सब चीज़ों को बहुत ही प्रायोरिटीज़ दी जा रही है। और यहाँ भी कस्टम में भी जाएंगे तो यहाँ भी टॉप से लेके नीचे तक के ऑफिसर्स हैंड कैरीज के लिए हर प्रकार से मदद कर रहे हैं। तो अगर कोई चैलेंजेस है तो 3 ऑफिसर्स तो परमानेंटली, जो कि सर पहले यहाँ नहीं बैठते थे, लेकिन एडिशनल कमिश्नर यहाँ परमानेंटली बैठते हैं, DCAC यहीं पे होते हैं। आप उनसे जाकर के पर्सनली मिल सकते हैं, चार्जेस के बारे में क्लैरिफिकेशन ले सकते हैं, सर इस तरह के चार्जेस ये पर्टिकुलर CHA में बता रहे हैं, तो आपको इमीडिएटली क्लियर भी हो जाएगा। जहाँ तक BDB की बात है, हमें जो जानकारी है हमने आप सबको सर्कुलर शेयर किया हुआ है, BDB ने अपने चार्जेस सीधे जो पहले कोट किए थे वो भी हाफ कर दिए। तो चार्जेस रिड्यूस होने की जगह पे अगर कहीं ज़्यादा की बातें हो रही हैं तो एक बार आप शेयर करें, हम भी कस्टम के साथ बैठ करके हम उनको शेयर करेंगे, एक बार प्रॉपर्ली रिव्यू हो जाएगा कि कहाँ गैप है, तो हम उसको भी एड्रेस करने का प्रयास करेंगे। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून।
In case of re-import, just in case, once I have done it from Bombay Airport, so there is a compulsion that it should be cleared at INDPC 4 itself. In return, sometime it happens that because of technical faults or something, you get landed at Delhi or Pune or somewhere else airport. In that case, what should be the procedure to be followed? The international flight gets ended at Delhi or Ahmedabad airport or somewhere else due to technicalities. In that case, if I am getting out at Delhi airport or Ahmedabad airport, the goods are with me. In that case, what should be followed? Again, this is a very edge case. I hope this does not happen. And what you can do the moment you land, approach the red channel of that customs and contact us immediately. Because there are very designated ports where such facility has been made. Not all airports have such wonderful warehousing facility which BDP has done. JJPC has done. Because it is an exorbitant charges that they are bearing. In other airports, such malkhana would not be there. Even if there is one, it is generally used for detaining smuggled or other items. It is not specifically dedicated for precious items. Therefore, the moment you land at a different port, report to us, we'll get that thing transshipped to our port, and then we'll handle it over here. Because there are only two places where precious goods are being handled of diamond, that is Surat and PC4. If you get jewelry, you can bring it at other airports also. But if you're going for exhibition and selling something, and if you're given the bond here, eventually the re-import of consignment should be done at the port from where the shipment had taken place. Correct. But in case it's night time or something like that, and if it's Saturday or Sunday, something like that, what should be the Airport is procedure? functional 24 hours. So you will always have officers at red channel of every international airport in India. You have to simply go and report that कि इस कारण से ये flight बॉम्बे आने वाली थी, मुंबई आने वाली थी, लेकिन ये पुणे आ गई है या अहमदाबाद आ गई है. आप proper procedure कीजिए और हमें report कीजिए. We will get the goods transshipped here. Okay, so the goods should be detained over there first of all, and then we can get in touch, right? देखिए ये एक रेगुलर प्रोसीजर नहीं है, ये आप एक इमरजेंसी टाइप की सिचुएशन बता रहे हैं. तो अब इमरजेंसी के लिए इमरजेंसी मेजर्स लाए जाएंगे, ये कागज में लिखे हुए तो है नहीं कि क्या प्रोसीजर है इसका, तो वो उस टाइम पे केस टू केस बेसिस पे इसको सॉल्व किया जाएगा. Pandey ji is available, I think 24/7. I have not seen not picking up the call. So I think रात को उठाऊंगा ना, पकड़ के मारेंगे वो. So he is mostly available. If you land in such trouble, you definitely contact DJEPC, because even us, we get transferred across different formations. So me giving my personal number or Indraveer giving his personal number or Jayesh ji giving his personal number would not suffice. But Pandey ji is constant, Preeta madam is constant. You contact them immediately and they will get back to us. And at the same point of time, it is flagged, we'll talk to the DC or the JC there at that airport and we'll get this sorted out. थैंक यू सर. थैंक यू. मुझे लगता है इस पे हमें समाप्त कर देना चाहिए. काफ़ी कुछ प्रश्नों के उत्तर हो चुके हैं. तो सर थैंक यू सो मच आपको इस इतनी बड़ी ऑडियंस में आकर के इतने सारे क्लैरिफिकेशंस देने के लिए. मैं आपको बता दूं कि मुंबई कस्टम एक ऐसी कस्टम है जो इस तरह के ऑडियंस के बीच में आकर के लगातार आपके प्रश्नों के समाधान करने का प्रयास कर रही है. आप सब अपने प्रश्नों को लेकर के आएँ और हमसे भी समाधान प्राप्त करें. हम भी इस चीज़ को ले जाएं जिस पोर्टल से समाचार हमें जहां से हमें समाधान प्राप्त करना है. थैंक यू सो मच. अपने फीडबैक भी आप लोग शेयर कर सकते हैं. आप जितने लोग अटेंडीज हैं, आपको फीडबैक फॉर्म भेज देंगे. आप अपने फीडबैक भी दीजिए. थैंक यू सो मच. यहाँ इस तरफ चाय का भी अरेंजमेंट है सर. हमने इसको बताना भूल गया, तो आप चाय पी के तब निकले तो बेटर है, नहीं तो चाय वेस्टेज जाएगी. सबके लिए अरेंजमेंट किया हुआ है. थैंक यू.